Hello everyone, welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study structure of atom. This is topic number 4 from Maharashtra State Board Syllabus 11th Standard. Structure of atom. The topics to be covered in this chapter are subatomic particles, atomic number and atomic mass number, isotopes, isobars and isotones, drawbacks of Rutherford atomic model, developments leading to the Bohr's atomic model, Bohr's model of hydrogen atom, quantum mechanical model of atom. And today we are going to deal with subatomic particles. So the topics we are going to study today are subatomic particles, atomic number and atomic mass number, and isotopes, isobars and isotones. So these are the three topics that we are going to study today. So let's begin with can you recall. So this part you have studied in 9th or 10th standard, and from that section these questions are there that can you recall. What is the smallest unit of matter? So the smallest unit of matter is considered as atom. So atom is actually considered as the smallest unit of matter. Second, what is the difference between molecules of element and those of molecules of compound? So let's write example for that. So if you want to see the molecule of element, so the molecule of element example H2. So H2 is the molecule of a element, while the molecule of a compound is H2O. So this is the molecule of a compound. So what is the difference? So the molecule of element have all the atoms same. जो भी element का molecule होता है उसके सारे atoms same होते हैं, but molecule of compound होता है उसके atoms different होते हैं. तो compounds में different atoms होते हैं while elements में same atom होते हैं. तो ये difference है दोनों के molecule में. नेक्स्ट है डज एन एटम हैव एन आइडेंटिकल इंटरनल स्ट्रक्चर और इट इज़ इनडिविजिबल. तो अर्लियर जब एकदम स्टार्टिंग में जब एटम फाइंड आउट हुआ था तब कहा जाता था एटम इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल, इनविजिबल एंड इनडिविजिबल. बट लेटर ऑन ये प्रूफ हो गया है कि एटम को इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एटम हैज़ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इट इज डिविजिबल. Okay, so the correct answer for this is atom has internal structure and it is divisible. Next, which particle was identified by J.J. Thomson in the cathode ray tube experiment? तो J.J. Thomson ने किसका पता लगाया था? Electrons. So electrons were found out by J.J. Thomson in the cathode ray experiment. Okay, next question. Which part of an atom was discovered by Ernest Rutherford from the experiment of scattering of alpha particles by gold foil? तो इससे कौन से particles का पता चला था? वो है प्रोटॉन. तो रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज करके किस पार्टिकल का पता लगाया था? वो था प्रोटॉन. तो ये हुए आपके सारे आंसर्स फॉर कैन यू रिकॉल. नाउ वी मूव टूवर्ड द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द आर चैप्टर दैट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब एटम्स के अंदर कौन से पार्टिकल्स है उसे कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स. So, Dalton's atomic theory was able to explain the laws of chemical combination successfully. ठीक है, डाल्टन्स का थियोरी हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है. यदि आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकते हो. तो उसमें जो डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी है
वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर पा रहा था, बट स्टिल वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फॉर एग्जाम्पल, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सब्सटेंस लाइक ग्लास या इबनॉइड जब आप सिल्क या फर में रगड़ते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. ये क्यों कर पाता है? तो आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जो आपकी स्केल होती है या फिर आप ग्लास का कोई सरफेस लो और उसको सिल्क या फर में बहुत रगड़ो और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को वो ग्लास या स्केल आपका अट्रैक्ट कर पाता है. ठीक है, वो उसको अट्रैक्ट कर पाता है अपनी तरफ मैग्नेट की तरह. और मतलब वो क्या कर रहा है, एक्चुअली स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. और ये क्यों कर पा रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. Next, the discovery of subatomic particles in late 19th and early 20th century set a blow to Dalton's atomic model of hard sphere. Dalton's atomic model ने क्या कंसिडर किया था कि molecules and matters are hard sphere, but ये प्रूव हो गया wrong. ठीक है, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चला तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इज द इंडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. इट इज इनविजिबल बट इट इज नॉट इंडिविजिबल, और इसलिए डाल्टन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया. नाउ देयर वर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच वर डिस्कवर्ड इन दिस सेंचुरी. दे वर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इन अर्ली 19th में, लेट 90 और अर्ली 20 में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिकली फाइंड आउट हुए थे. वो थे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में. तो ये देख सकते हो, ये है आपका मॉलिक्यूल का या एटम का न्यूक्लियस. ये एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसे साथ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कहेंगे हम न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम में. तो ये जो बाहर का पार्ट हो गया, जो न्यूक्लियस के अलावा दूसरा पार्ट हो गया, उसे कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो टुगेदर बनाते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में. Now there are some properties of these particles, that is electron, proton and neutron. तो इनकी सिंबल है इलेक्ट्रॉन का E माइनस, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का A. और उनके चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे है माइनस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज. प्रोटॉन पे है प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 और न्यूट्रॉन पे है 0. अब रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विथ -1 चार्ज. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ +1 चार्ज, while न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. तो सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सिंबल है -E क्योंकि -1 है. प्रोटॉन का चार्ज है +E. ठीक है, अब मास बाय केजी बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.109 इंटू 10⁻31. प्रोटॉन का चार्ज है 1.6726 इंटू 10⁻27, वाइल न्यूट्रॉन का चार्ज है 1.674 इंटू 10⁻27. तो आप देख सकते हो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नियरली सेम इन देयर मास, बट इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी वेरी निग्लिजिबल मास. इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को मॉलिक्यूल के मास में काउंट ही नहीं करते. तो मास पर यूनिट को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर निग्लिजिबल मास विद 0.0054. Okay, while proton has 1.00727, while neutrons have 1.00867. और इसको आप अप्रोक्सीमेट मास में काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास नियरली निग्लिजिबल है, दैट इज 0 यूनिट, और प्रोटॉन का है 1 यूनिट, और सेम मास नियरली काउंट किया जाता है न्यूट्रॉन के लिए भी 1 यूनिट. तो ये हुए प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड हुआ था? तो इन ईयर 1897 जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब में कोई स्टडी कर रहे थे. ठीक है, तो जे थॉमसन एक्चुअली क्या कर रहे थे, एक कैथोड रे ट्यूब लिया था उन्होंने. उस कैथोड रे ट्यूब में 2 पार्ट था, एक था कैथोड और एक था एनोड. और उसमें एक्चुअली उन्होंने ना दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू किया और वो पोटेंशियल डिफरेंस डाल के, अब उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये समझ लो कि उसमें कैथोड था और एनोड था. और जब इस कैथोड रे ट्यूब को उन्होंने
ऑपरेट करना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है और वो बहुत वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लगा है और इसलिए इस ट्यूब का नाम हो गया कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि वो ट्यूब में कैथोड से पार्टिकल एनोड की तरफ मूव कर रहा था और पार्टिकल जनरेट हो रहा था कैथोड पे, इसलिए इसे कह दिया कैथोड रे ट्यूब। अब नेक्स्ट थिंग, जो पार्टिकल वो निकल रहे थे उसको उसका नेचर पता लगाने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया, दो प्लेट्स रखे, एक नेगेटिव प्लेट आप यहाँ पे देख सकते हो और एक पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो ये दो प्लेट्स उन्होंने अप्लाई कर दिए। अब वो जो रे था, वो जो पार्टिकल निकल रहा था, वो क्या हुआ, इस प्लेट थ्रू पास हुआ। जब ये प्लेट थ्रू पास हुआ तो नेगेटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब नेगेटिव प्लेट से दूर जा रहा था और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। जो भी रे था वो क्या हो रहा था, नेगेटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट हो रहा था, दूर जा रहा था और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इससे जे थॉमसन को पता चल गया ये जो भी पार्टिकल निकल रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज से रिपेल हो रहे हैं, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए उन्हें पता चल गया कि ये जो भी चार्जेस हैं, ये जो भी पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए नेगेटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उन्हें एक और बात पता चली कि ये जो भी पार्टिकल है 1837 टाइम्स लाइटर है हाइड्रोजन एटम से एंड आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। और ये जो भी पार्टिकल है वो हर एक एटम में प्रेजेंट है। उन्होंने बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स का स्टडी किया और उन्होंने पाया ये पार्टिकल हर एक एटम में प्रेजेंट है और 1837 टाइम्स लाइटर है हाइड्रोजन एटम से। और आगे जाके इस पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। और वो फाउंड आउट हुए थे जे थॉमसन के कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट थ्रू इन 1897। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ था रुदरफोर्ड से, ठीक है। तो रुदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विथ थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। और तभी ये हुआ था 1911 में और रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करते हुए पाया कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन गोल्ड फॉइल दैट अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक। तो उन्होंने क्या किया, ये थिन गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल लिया और उससे जब उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, वो एक्सपेरिमेंट करते हुए कि उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये थिन गोल्ड फॉइल से। और अल्फा पार्टिकल्स निकलते वक्त क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स वापस रिवर्ट आ रहे हैं, बाउंस बैक हो रहे हैं। और ये जो उन्होंने फाइंड आउट किया इन द प्रेजेंस ऑफ मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इनसाइड द एटम। और जब वो पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, उस पार्टिकल्स का उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें पता चला वो पार्टिकल्स एक्चुअली बहुत मैसिव है, मतलब हायर इन वेट है एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज और वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के बीचों बीच। तो ये रुदरफोर्ड ने फाउंड आउट किया अल्फा पार्टिकल के बाउंस बैक एक्टिविटी से। अभी following the discovery of the nucleus in an atom, Rutherford found that fast moving alpha particles transmuted nitrogen into oxygen with simultaneously liberation of hydrogen। तो रुदरफोर्ड ने तो पता लगा लिया कि कोई पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और वो न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। बट फर्दर उन्होंने ये भी पता लगाया कि ये जो भी फास्ट मूविंग पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो नाइट्रोजन एटम के साथ जब आप उसको ये करोगे, ट्रीट करोगे, मतलब नाइट्रोजन एटम को रख दोगे और उस पर वो अल्फा पार्टिकल को आप बाउंस करोगे, तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो ट्रांसम्यूट हो जाएगा ऑक्सीजन में विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब उन्होंने क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल को बहुत सारे एलिमेंट्स पे ट्रीट किया, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स पे उन्होंने उसको ट्रीट किया, मतलब उस अल्फा पार्टिकल्स को उसकी तरफ फेंका, ऐसे बोल सकते हो। तो बहुत सारे एलिमेंट्स पे उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल को ट्रीट किया तो उन्होंने देखा सारे एलिमेंट्स ट्रांसम्यूटेड हो रहे हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन इमिट हो रहा है। हर एलिमेंट के केस में जब भी उन्होंने नाइट्रोजन की जगह दूसरे एलिमेंट्स लिए, अल्फा पार्टिकल के साथ ट्रीट किया, तो उन्हें हमेशा दूसरा एलिमेंट मिला, दैट इज ट्रांसम्यूटेड फॉर्म ऑफ दैट एलिमेंट
प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिक्स मिल रहा था। इसलिए रुदरफोर्ड ने प्रपोज किया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस मस्ट कंटेन इनसाइड न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या कंसिडर किया रुदरफोर्ड ने कि हर एक एलिमेंट में, जितने भी यूनिवर्स में एलिमेंट है, सब के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस का सिमिलर न्यूक्लियस हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होता है। इसलिए हर एक एलिमेंट आपका ट्रांसम्यूटेड होने के बाद क्या इमिट कर रहा था, हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट nucleus is very similar to the nucleus of all element and hence the hydrogen nucleus को हमने क्या कहना शुरू किया, प्रोटॉन, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन का इन्वेंशन किया। नेक्स्ट वाज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड मैसिव पार्टिकल इन द न्यूक्लियस वाज प्रिडिक्टेड बाय रुदरफोर्ड इन 1920, ठीक है, टू अकाउंट फॉर द डिस्पेरिटी इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अब रुदरफोर्ड ने क्या हुआ, रुदरफोर्ड ने जब प्रोटॉन को फाइंड आउट किया तब उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो पहले ही फाइंड आउट हो चुका था, प्रोटॉन के फाइंड आउट होने के पहले ही इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हुआ था। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल था। अब उनको पता था कि जो भी मॉलिक्यूल का या एक एटम का मास होगा वो मास उसके प्रोटॉन का ही मास होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रोटॉन का मास ही उस एटम का मास होना चाहिए। बट जब रुदरफोर्ड ने स्टडी किया, फॉर एग्जाम्पल फॉर हीलियम, हीलियम का मास नंबर जो था वो था 4, एटॉमिक मास नंबर हीलियम का क्या था, 4, बट उसका एटॉमिक नंबर था 2। अब रुदरफोर्ड के हिसाब से यदि न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं रहा था। और इसलिए रुदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर और भी कुछ प्रोटॉन के साथ प्रेजेंट होता है, पर रुदरफोर्ड ने पता नहीं लगा पाए, ठीक है। उन्होंने सिर्फ कहा, प्रिडिक्ट किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ और भी कुछ प्रेजेंट है जो एटॉमिक मास नंबर उस एलिमेंट को दे रहा है। फिर इन ईयर 1932 जेम्स चार्डविक measured velocity of protons knocked out from the paraffin by an unidentified radiation from beryllium। तो क्या किया चार्डविक ने, एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बेरिलियम लिया और उसमें से जो पार्टिकल्स है वो इमिट हुए जो पैराफिन को नॉकआउट कर रहे थे, ठीक है। फ्रॉम दैट ही डिटरमाइंड द मास ऑफ पार्टिकल ऑफ अनआइडेंटिफाइड न्यूट्रल रेडिएशन। तो जब चार्डविक ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि प्रोटॉन के साथ साथ एक अनचार्ज पार्टिकल भी इमिट हो रहा है बेरिलियम से, और ये जो रेडिएशन है उसका जो भी वेट है वो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द सेम टू द प्रोटॉन्स। तो उन्होंने यही पता लगाया कि द मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अनआइडेंटिफाइड न्यूट्रल रेडिएशन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द बेरिलियम इज ऑलमोस्ट सेम दैट ऑफ प्रोटॉन, और अब इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, चार्डविक ने। देखो रुदरफोर्ड ने सिर्फ ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ और भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जो उस एटम को एक मास नंबर देता है, तो इसलिए एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का डिफरेंट है। बट जेम्स चार्डविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बेरिलियम लिया और उससे फिर रेडिएशंस, अनआइडेंटिफाइड रेडिएशंस को पैराफिन के ऊपर, पैराफिन वैक्स के ऊपर उन्होंने बॉन्स किया। तो उसके बाद पता चला उनको कि वहाँ पे प्रोटॉन्स के रेडिएशंस के अलावा और एक रेडिएशन निकल रहे हैं और वो अननोन रेडिएशन से न्यूट्रल है पर उनका मास सिमिलर टू प्रोटॉन का मास है, और इसका नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने इन्वेंट किया, मतलब डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने, प्रोटॉन रुदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चार्डविक ने। अब हम मूव करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर की तरफ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर? So the number of protons in the nucleus is chemical identity of an element। कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एक गिवन एलिमेंट के न्यूक्लियस में है, उस एलिमेंट का वो आइडेंटिटी है, उससे हम उस एलिमेंट को पहचान सकते हैं।
So this number is called as atomic number Z of an element, and each element has different atomic number, और वो उस एलिमेंट का आइडेंटिटी होता है. जैसे फिंगरप्रिंट्स ह्यूमंस का आइडेंटिटी, वैसे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर्स आर आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. Now the positive charge on the nucleus is due to the protons present, and it is in plus Ze charge. तो जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उतना पॉजिटिव चार्ज होगा उस न्यूक्लियस पे, क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. बट इफ यू सी दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, तो अब एटम्स का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो हम क्या सोचेंगे कि एटम एज अ होल शुड ऑल्सो बी पॉजिटिवली चार्ज. बट जब एटम्स का स्टडी किया गया, ये फाउंड आउट हुआ कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नाउ व्हाई दिस हैपेंस? Because it contains same number of extra nuclear electrons and as its atomic number. मतलब जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कोई भी एटम में, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है उस एटम में, और इसलिए वो एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड इट्स नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज सेम. और इसलिए कहा जाता है जितना भी एटॉमिक नंबर होता है कोई भी एलिमेंट का, उतना ही नंबर होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ protons. Therefore, the total electronic charge on an atom is minus Ze. Now, does in an atom atomic number Z is equal to number of protons, or you can say as number of electrons? ठीक है, so number of protons is equal to number of electrons in any element, and number of protons means atomic number. So atomic number indirectly means number of electrons also. So you can say that atomic number is equal to number of protons, or it is equal to number of electrons. Now, mass of an electron is negligible, small compared to that of nucleons. तो mass of an electron होता है बहुत negligible है. वो तो हमने पिछले बार प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त यहाँ पे समझ लिया था कि mass of an electron is negligible, so 10⁻31, और इनके मास है 10⁻27. तो इस ये दोनों से कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है. ठीक है, एंड as a result, the mass of the atom is considered to be concentrated in its nucleus. और mass of the electrons negligible होने की वजह से कोई भी एलिमेंट के एटम का मास को किसका मास कहा जाता है? न्यूक्लियस का मास. तो कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस का मास जो होगा वही उसके होल एटम का मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लिजिबल है. और न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस करके जो भी मास होगा वो उस एटम का मास होगा. सो द एप्रोक्सीमेट मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन इज 1 यूनिट. हमने तो पढ़ा है कि 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन का हम अप्रोक्सीमेट मास क्या लेंगे? 1 यूनिट. देयरफॉर एटॉमिक मास इन डेल्टन्स इन न्यूमेरिकल इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द एटम. मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, वो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर. सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज डेसिग्नेटेड बाय सिंबल n, and the total number of protons and neutrons, that is nucleons, in the atom is designated by atomic mass number A. So what is atomic mass number A? Atomic mass number A is the sum of number of protons and neutrons in that nucleons, okay, in that atom. So atomic number is the number of protons present in that element, while atomic mass number is the sum of number of protons and number of neutrons in that atom. Therefore, mass number is designated by A is equal to number of protons plus number of neutrons. That is, you can write as A equals to Z plus N, or you can even write as N equals to Z minus A. तो ये दो अलग अलग फॉर्मूला है. यदि आपको
आपको मास नंबर फाइंड आउट करना है और आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है तो Z प्लस n कर दो, या फिर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो द कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट सिंबल x. तो कोई भी एलिमेंट आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे, अभी भी आप तुरंत देख सकते हो, तो पीरियोडिक टेबल में आप x कंसीडर करो कोई भी एलिमेंट को, और जो भी उसके सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है दैट इज ए, सो दैट विल बी इट्स एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, उस एलिमेंट के जो भी सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ वो होगा ए, दैट इज एटॉमिक मास नंबर. और उस एलिमेंट के जो भी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है दैट इज जेड, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर. तो कोई भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेड है, आप उस पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसके ऊपर सबस्क्रिप्ट है और सुपरस्क्रिप्ट भी है. जो सुपरस्क्रिप्ट है वो है एटॉमिक मास नंबर ए, और जो सबस्क्रिप्ट है वो है एटॉमिक नंबर Z. And the atom or nucleus having a unique composition is given by AXZ is the nuclide. ठीक है, उसको कहेंगे न्यूक्लियाइड. तो हर पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट न्यूक्लियाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है. नाउ इज अ क्वेश्चन, find out the number of protons, electrons and neutrons in the nuclide, that is argon 40 and 18. तो आपको इसमें क्या क्या पता लगाना है, number of proton, number of electrons and number of neutrons. ठीक है, अब आपको पता है AR मतलब क्या हो गया आपका X. ठीक है, अब सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है आपका A, और सबस्क्रिप्ट में क्या होता है आपका Z. मतलब A इज इक्वल टू 40, Z इज इक्वल्स टू 18, ये गिवन है. ठीक है, क्योंकि X सुपरस्क्रिप्ट इज A एंड सबस्क्रिप्ट इज Z. तो अब यहाँ पे X हो गया AR, A हो गया 40 एंड Z हो गया 18. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हर एक एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. करेक्ट, देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू 18. मतलब AR में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 18, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा 18. अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगाना है, तो n इक्वल्स टू A माइनस Z. तो आपको A पता है 40, Z पता है 18, उसको माइनस करो 22. सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आर्गॉन इज 22. तो इस तरह से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज एटॉमिक नंबर, दैट इज Z, and number of proton is always equal to the number of electron, that is Z itself, and number of neutrons, that is your n is equal to A minus Z, that is mass number minus atomic number. Now we come to the next concept, that is isotopes, isobars and isotones, and this is very important section. Definitions comes in exam from this part. So what are isotopes? Some elements exist as a single natural nuclide, for example F99. तो कोई कोई एलिमेंट है वो नेचर में सिर्फ एक ही न्यूक्लियाइड की तरह फाउंड आउट होता है. मतलब उस एलिमेंट का एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है. उसको फॉर एग्जांपल ले लो फ्लोरीन. फ्लोरीन एक ही टाइप ऑफ न्यूक्लियस में फाइंड आउट होता है, जिसका एटॉमिक मास नंबर होता है 19 और एटॉमिक नंबर होता है 9. बट there are many elements which exist in naturally as a mixture of two or more types of atoms or nuclides, and these individual nuclides are called as isotopes of that element. ठीक है, बट फ्लोरीन के अलावा ऐसे और भी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो मिक्सचर ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाइड्स के मिक्सचर में प्रेजेंट होता है. मतलब उनका न्यूक्लियस एक दूसरे से डिफरेंट होता है. वो एलिमेंट सेम होते हैं बट उनका न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, और वो एक मिक्सचर में फाइंड आउट होते हैं. मतलब वो नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं एज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स, और वो डिफरेंट एटम्स भी बना देंगे, क्योंकि डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स हुआ तो डिफरेंट एटम्स भी हो जाएगा. सो all the isotopes of an element have same number of protons but different number of neutrons in their nuclei. So what are isotopes? Isotopes are the element, ये वाला डेफिनेशन है. ठीक है, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब Z क्या है सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस. मतलब क्या डिफरेंट होना चाहिए उनका A. Therefore you can say that they have same atomic number but different mass number.
ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स वो एलिमेंट है जिनके प्रोटॉन नंबर सेम है. प्रोटॉन नंबर सेम है मतलब Z सेम है, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब A डिफरेंट है क्योंकि A इक्वल्स टू Z प्लस N, तो इसलिए अभी A डिफरेंट हो गया. सो यू कैन से दैट आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass number. So as the proton number is the atomic number, all the isotopes and element have same position in the periodic table which exhibit similar chemical properties. तो actually क्या होता है, all isotopes have same chemical properties, क्योंकि ज़्यादातर प्रोटॉन नंबर से ही हम periodic table का पोजीशन डिसाइड करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही periodic table में आपका पोजीशन बताता है. और ये सारे एलिमेंट्स को जो एक ही के बने हुए हैं उनके सारे एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, इसलिए उनका सारे आइसोटोप्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह होता है. बट सिर्फ उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या है उनके मास नंबर में. एंड ऑल द नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट को एग्जिस्ट एंड अ डेफिनाइट नेचुरल अबंडेंस. सारे जो भी एलिमेंट के जो भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं वो साथ में प्रेजेंट होते हैं कभी भी ग्रुप में, बट उनका जो नेचुरल अबंडेंस है उसका रेशियो अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. तो आप देख सकते हो तीनों का एटॉमिक नंबर Z सेम है, और इसलिए ये तीनों भी कार्बन को पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह है, पी ब्लॉक एलिमेंट में. ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में तीनों भी कार्बन एक ही जगह पे मिलेंगे आपको, दैट इज कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज सेम, बट द एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट, दैट इज 12, 13 एंड 14. दैट मीन्स दैट देयर न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट. एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है. ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z. तो आप जब 12 से -6 करोगे तो 6, 13 से 6 माइनस करोगे 7, और 14 से 6 माइनस करोगे तो 18. इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. सो आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स हु हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टर्म में बात करना तो ये हुआ डेफिनेशन. यदि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के टर्म में बात करना है तो isotopes are those elements who have same atomic number, same atomic number but different mass number. अब उनके abundance की बात करें तो कार्बन 12 सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्स में पाया जाता है, दैट इज 98.9%, while कार्बन 13 is only 1%, वाइल कार्बन 14 इज़ वेरी वेरी निग्लिजिबल. और स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बन 12 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कार्बन 13 कम स्टेबल है नहीं है पर कम अबंडेंस है, बट कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो ये हुआ आइसोटोप्स. Now next we move towards isobars. So the atoms of different element having same mass number but different atomic number is called as isobars. तो अब definition of isotopes था उसका just opposite आपको isobar का definition लिखना है. यहाँ पे mass number क्या है, same है but atomic number different है. isotopes में just इसका opposite था. isotopes में क्या था, atomic number same था बट मास नंबर डिफरेंट था. अब आइसोबार में मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. बट और एक डिफरेंस है, आइसोटोप्स में वो जो भी आइसोटोप्स होते हैं वो सेम जगह ऑक्यूपाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, बट आइसोबार्स आर डिफरेंट एलिमेंट. आइसोबार्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ही होते हैं. आइसोटोप्स आर नॉट डिफरेंट एलिमेंट्स बट आइसोबार्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड देयरफॉर दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो आपने ये समझ लिया होगा कि मास नंबर चेंज करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो लोग पीरियोडिक टेबल में सेम जगह ऑक्यूपाई करते हैं. बट आप एटॉमिक नंबर चेंज करोगे तो डिफरेंट एलिमेंट ही बन जाता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाते हैं और वो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट जगह ऑक्यूपाई करता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द आइसोबार फॉर कार्बन 14 and nitrogen 14. So you can see their atomic mass number is same, that is A. तो एटॉमिक मास नंबर सेम है कार्बन और नाइट्रोजन का, बट द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. और इससे आप बता सकते हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों भी डिफरेंट हो जाता है. तो आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक
number, and they are different element, occupy different place in the periodic table, having different chemical properties. अब isotones. So the atoms of different elements having same number of neutrons in their nuclei are called as isotones. Isotones मतलब having same number of neutrons, जिनमें भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वो हो जाता है आइसोटोन्स. तो आइसोटोन्स में एक्चुअली एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर दोनों भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, आइसोटोन्स में एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर दोनों भी डिफरेंट होते हैं. तो आइसोटोप्स में क्या सेम था, एटॉमिक नंबर. आइसोबार में क्या सेम था, एटॉमिक मास नंबर. पर आइसोटोन में दोनों भी डिफरेंट है. You can see, for example, beryllium and carbon. So it is beryllium 11, carbon 12. यहाँ पे एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का 5, सॉरी बोरॉन का 5 एंड कार्बन का 6. इट इज़ नॉट बेरिलियम, बोरॉन, सॉरी. सो यहाँ पे बोरॉन 11, कार्बन 12. यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन है 5 और एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, बट देयर एटॉमिक मास नंबर ऑफ बोरॉन इज 11, एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12. तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है. बट अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो, दैट इज n इक्वल्स टू z माइनस a. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है. सो आइसोटोन्स आर दोज एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बट सेम number of neutrons. So here is a question. The two natural isotopes of chlorine, that is Cl35 and Cl37, exist in natural abundance 3:1. ठीक है, तो नेचर में Cl35 एंड Cl37 किस रेशियो में पाया जाता है, 3:1. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट देयर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. तो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का आप क्या लोगे, ये फाइंड आउट करना है. तो अब रिलेटिव अबंडेंस क्या है, 3:1. तो 3 + 1 आप करोगे तो 4, मतलब 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन में से 3 एटम्स का मास क्या होगा, 35, और 1 एटम का मास होगा 37. क्योंकि यहाँ पे देखो मास नंबर दिया हुआ है, इससे मैं मास पता लगा रही हूँ क्योंकि मास नंबर गिवन है. तो नेचुरल अबंडेंस मुझे पता चल गया 3:1, मतलब 3 + 1 क्या हुआ, 4. मतलब मैं जब 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन लूँगी तो उस 4 एटम में से 3 एटम का मास क्या होना चाहिए, 35, और 1 एटम का मास क्या होना चाहिए, 37. तो अब एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो 3 × 35 + 1 × 37 डिवाइड बाई टोटल मीन्स 4. ठीक है, टोटल मॉलिक एटम्स लिया है 4. तो 3 एटम का वजन क्या है, 35, 1 एटम का वजन क्या है, 37, और टोटल एटम्स कितने हैं, 4. इनका एवरेज निकालो तो मिलेगा 35.5. सो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास लेते हैं 35.5, क्योंकि वो एवरेज एटॉमिक मास लेना होता है दोनों आइसोटोप्स का. ठीक है, नेक्स्ट है, द 3 एलिमेंट्स Q, R एंड T हैव मास नंबर 40. मतलब उनके सारे मास नंबर सेम है. ठीक है, 3 एलिमेंट है मेरे पास Q, R, T, और तीनों के मास नंबर क्या सेम है, 40. मतलब ये क्या हो गया, एक दूसरे के आइसोबार्स, बिकॉज आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक मास नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो ये हो गया आइसोबार्स ऑफ ईच अदर. नाउ द एटम्स कंटेन 22, 21 एंड 20 न्यूट्रॉन्स. तो तीनों के मास नंबर सेम है और उनके न्यूट्रॉन का नंबर भी दिया हुआ उन्होंने 22, 21 एंड 20. नाउ रिप्रेजेंट द एटॉमिक कॉम्पोजिशन विद देयर सिंबल. तो आपको अभी उसका एटॉमिक कॉम्पोजिशन बताना है, मतलब x इस टर्म में लिखना है आपको. x मतलब हो जाएगा Q, R एंड T, क्योंकि ये x, Q, R एंड T ही है, और उसके ऊपर आप लिखोगे A, दैट इज देयर एटॉमिक मास नंबर जो पता है आपको 40 फिक्स है, और नीचे लिखोगे Z. तो आपको Z एक्चुअली कैलकुलेट करना है. अभी A = Z + N. अब आपके पास A गिवन है 40, N गिवन है 22, 21, 20, आपको Z पता लगाना है. तो Z = A - N. तो क्वेश्चन समझ लिया कि सबका एटॉमिक मास नंबर दैट इज A दिया हुआ है आपको 40, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दिया हुआ है 22, 21, 20, और आपको पता क्या लगाना है, आप सिर्फ Z, और Z पता लगाने के बाद वो सारे तीनों को आपको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है. तो आप पता लगाओ फॉर Q Z = A - N, दैट इज 40 - 22.
ठीक है, दैट इज 18। वैसे ही R का आ जाएगा Z 19 और T का Z आ जाएगा 20। अब इस तीनों को इस फॉर्म में लिखो, Q R एंड T के फॉर्म में। तो Q एटॉमिक मास नंबर इज 40, 18 क्योंकि आपने Z कैलकुलेट किया, एटॉमिक नंबर Z कैलकुलेट कर रहे हो मतलब एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हो। R is 40 19 and T is 40 20. So these three are isobars of each other, having same mass number but different atomic number. And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you have liked my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends. And before departing, don't let yourself be controlled by three things: your past, money, and people. That's all for today. Thank you. Stay tuned.